आर्टिस्ट को पैसा मत दे चलेगा, उसको वैलिडेशन दे दे। मतलब मैंने ये किसी का तो जोक था, आई डोंट रिमेंबर, कि बंदों को सेक्स मत दो, उनको वैलिडेशन दे दो। मतलब जयेश को सेक्स मत दो, ठीक है, जयेश को बोल दो मैं तेरे साथ सेक्स करूंगी, जयेश खुश है। मतलब जस्ट एग्जाम्पल यार। जयेश को सेक्स मत दो वाली लाइन डाल दी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसको दो देना है, दो, ठीक है, नको। While you were performing और जब भी कोई बीट लिखते थे, so do you ever got the fear of the attacks or did you ever got any death threats from? नहीं, never. मेरी फटती है भाई। क्यों फालतू में जाके सलमान खान बनना है ना। Why should you go in front of people and do shit which offends them? If you are a comedian, and I think मेरे पास वैसे जोक्स ही नहीं है यार। ऐसा कभी कोई आया नहीं मेरे पास, मेरे पास चाकू लेके भाग के नहीं आया, फिर किसी ने मेरा रेप नहीं किया कि मैं जाके उन लोग के बारे में बात करूँ, या फिर मेरे को कभी गवर्नमेंट ने परेशान नहीं किया तो मैं क्यों गवर्नमेंट को जाके ये करूँ ना। ओके, आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई एम अ राइटर, आई एम एन आर्टिस्ट, सो आई शुड स्पीक अबाउट द सोशल इशूज, या आई एम डूइंग दैट। मैं ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहा हूँ जो पहले टैबू हुआ करती थी, एंड दैट्स माई वे ऑफ राइटिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बीन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ माई जोक्स। आई हैव ट्राइड, नॉट पर्पजली, बट इट हैज़ हैपेंड कि मैंने कभी जाके ऑफेंसिव जोक्स किए ही नहीं, so that people will get offended. And even if I'm roasting people, I make sure that they are on my team before roasting them. मतलब मैं ऐसे randomly किसी को जाके पकड़ लूँ और उसको roast करूँ, that doesn't work. If I talk to them, if I feel that they're chill with the conversation, that is when I start roasting them, and they also like it. Because अपने देश में consent अब तक आया ही नहीं है. People are still waiting, Amazon deliver करेगा consent और फिर अपन उस तरीके से behave करेंगे. But if you have that small thing called consent inside you, as a comedian also, you will be very positive and you will be liked a lot. Because I really don't feel that you should have haters to reach somewhere. If you have haters, great. Try to, for example, Munawar. He had haters. He came back, he started delivering different set of content, he improvised. Even 50, अगर 50% लोग उसको hate करता था, उसमें से अभी 20% लोग उसको follow भी करने लग गया और उसको पसंद भी करने लग गया. So it all depends on how you're taking it and eventually where you wish to take it. So I have never had any instance जहाँ पे I was like threatened या फिर किसी ने मेरे को call कर दिया, नहीं, no, nothing like that, no. So yeah, safe, play safe. बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। No भैया, रिस्क का एक अकेला है मैं बाप का, जायदाद अब तक नाम पे नहीं हुई, क्यों मारूं बहन से। All right, yeah. So, what is your biggest motivation for becoming a comedian? Again, I am writing on motivation. There is nothing called as motivation. कुछ नहीं, मेरे को करना है. I find that fascinating. That's why I do it. मतलब I got into comedy just to try. Because I liked it, I'm there. And if there comes a day when I feel getting on stage is boring, I should leave it. Because then that is stretching myself. And that is where stress comes into picture. यार मेरे को करना ही नहीं, मैं कर रहा हूँ. So I really never had any motivation. Yeah, I used to see Abhishek Upmanyu. I used to see Vipul Goyal. मैंने अनुभव पॉल को देखा था. I've seen a few people live before starting stand up, but I never had any motivation कि मेरे को इसको देख के stand up करना है, नहीं. It just happened to me. It came to me, and then eventually I realized, oh fuck, मेरे को इसके जैसा बनना है. इसके जैसा मेरे को कभी तो लिखना है. I have a motivation today. I look up to certain people कि यार ये मस्त है, ऐसा कुछ तो करते हैं, ऐसा कुछ तो आना चाहिए. But when I started, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. I just started out of nowhere and it turned out to be good. तो मजा है. Okay, so I think you already answered this question, but still, if you were to like to add to it, how was your first show like? जो पहले बोला वो तो हुआ. It turned out to be a big success for me. But it was very nervous. It was nerve-wracking for me. Because मैं बच्चों के सामने जाके सिखाता था. I used to have hundreds and 150 kids in front of me. स्कूल में अगर ऑडिटोरियम लेक्चर रहता था, I was never scared of that. But the context was different. The fact is, students used to look up to me as a teacher. But audience के केस में वैसा नहीं था. Audience मेरे को जज करने बैठा था. So that was something which was scaring the shit out of me. And the worst part was, भाई, it was a jam-packed show. मतलब शेल था, अंडरग्राउंड, 110-120 लोग, एंड योर परफॉर्म, ओपन माइक कभी किया नहीं,
कभी जाके दोस्तों को तक जोक नहीं सुना है. मतलब मेरे दोस्तों में अगर तू जाके बोलेगा कि प्रतीक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो हंसने लग जाएंगे. नॉट फॉर द फैक्ट दैट आई एम फनी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वेयर आई कम फ्रॉम. वो मेरा चुतिया काटने लग जाएंगे वो. मतलब दैट इज द थिंग. मेरा आज तक मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे शो के लिए आ नहीं पाया बिकॉज इज लाइक मैं हंस ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज आई कैन सी इट इज स्क्रिप्टेड बाय यू, दैट इज नॉट यू. तो दैट डे इट वॉज अ क्वेश्चन विच आई हैड आस्क्ड टू माई सेल्फ कि तू है क्या फनी. एंड देन आई माई सेल्फ गॉट द आंसर कि आई एम नॉट अ वेरी फनी पर्सन, but I had decided कि I'll write things which are funny, and that show it turned out to be a scripted show for me. मतलब उस दिन मैंने 10 मिनट का जोक लिख के रखा था, घर पे आने के सामने प्रैक्टिस किया था, और वही जोक मैं अगला 40 ओपन माइक तक परफॉर्म किया भाई, ऑलमोस्ट 40, unless and until I was not ready with the new set. मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं पुणे जा रहा हूँ, wherever I'm performing those same jokes. एंड एक टाइम ऐसा आ गया कि आई वॉज लाइक हाँ अभी ये रेडी है, दिस इज कुक्ड, छोड़ दो. फिर मैंने उसको पोस्ट कर दिया यूट्यूब पे, नॉट विद द व्यू कि मिलियंस मिलेगा. हाँ, मेरे को द रीज़न आई पोस्ट ऑन यूट्यूब इज अभी उसको नहीं करना है, अभी उसको काफ़ी एक्सप्लोर कर. अगेन कॉमेडियंस विल हैव अ डिफरेंट थॉट ऑन दैट कि देयर इज नो टॉपिक विच इज एक्सप्लोर्ड इनफ. बट देन आई वॉज लाइक अभी मेरा इधर क्रिएटिव ब्लॉक आ गया है, आई हैव डेवलप्ड डिफरेंट एवेन्यूज, मैं अलग जगह पे लिखने लग गया हूँ. सो दैट सेट was very close to me, but that was a very inspired set कि इसके सेट से थोड़ा सा इधर से मोटिवेशन ले लिया, इसका सेट से थोड़ा मोटिवेशन ले लिया, ये जो कैसा तैयार कर लिया. 30 मतलब ओपन माइक्स के बाद आई वाज लाइक हाँ ओके नाउ आई हैव माय ओन जोक्स, बट देन स्टिल उसके अंदर वो अपनापन नहीं था. सो दैट आफ्टर दैट सेट वाज रिमूव्ड, आई केम अप विद औरंगाबाद सेट, एंड दैट वाज अपना खुद का. तो वो तो भाई मतलब 80-85 ओपन माइक्स आराम से क्या रहेगा. नॉट ओनली ओपन माइक्स, आई वाज इनवाइटेड इन कॉलेजेस, आई वाज इनवाइटेड एज अ जज, कई कंपटीशन परफॉर्म करने चला गया. मुंबई पुणे में भी वही जोक्स किया, दे वर्कड. सो फर्स्ट शो वाज जस्ट अ फैक्ट, लाइक क्या बोलते हैं उसको यार, समथिंग आई जस्ट वॉन्ट टू लुक बैक एंड फील गुड अबाउट. ओके वो हुआ अच्छा, बट देर आर मेनी बेटर अदर थिंग्स विच हैपेंड आफ्टर दैट. So I won't call it to be the best show, but yeah, it kind of made me realize that I can do this. So first show was that. Okay, so to all the aspiring comedians out there, how to become a better comedian? That's your own view. Yeah, purely your own view. मतलब see, funny cannot be defined. मेरे लिए एक चीज़ funny है, वो तेरे लिए नहीं है. और मैं तेरे सामने अगर आके वो बोलूँगा तो तेरे को पसंद नहीं आएगा. सो पुनीत ऑलवेज सेज दिस, पुनीत ही इज ऑलवेज लाइक तेरे को कौन सा कॉमेडियन बनना है वो डिसाइड कर ले प्रतीक. डू यू वांट टू राइट जो मार्केट में चलता है, या फिर डू यू वांट टू राइट जो तेरे दिमाग में चलता है. एंड अ बेटर कॉमेडियन इज द वन हु गोज बैक होम आफ्टर अ शो हैप्पी विथ हिमसेल्फ. हाँ भैया मेरे को ये फ्रस्ट्रेशन था मेरे अंदर, ये जोक्स मैंने लिखे थे, मेरे को ये बहुत फनी लगता था. फ्रस्ट्रेशन ही नहीं कंपलसरी. मेरे बाजू के बिल्डिंग में एक अंकल है, उसको पूरे टकले पे सिर्फ एक ही बाल है, मेरे को फनी लगता है, बोल दूंगा मैं जाके. यू लेट योर सेल्फ आउट, एंड इफ यू आर हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, सॉर्ट यू आर ऑलरेडी अ गुड कॉमेडियन. बिकॉज देख यू इवॉल्व, इट्स अ प्रोसेस. राइटिंग एक दिन में कोई सीख नहीं सकता. इफ आई गो एंड रिमेंबर माई फर्स्ट जोक, इतना टट्टी था वो, प्रॉपर टट्टी जोक. इट वॉज अबाउट द कॉमेंट्री कि रोहित शर्मा ने अपनी टांगे फैला लिए एंड समथिंग लाइक दैट. मतलब युजवेंद्र चाहल अभी बॉलिंग करेंगे. द जोक वॉज समथिंग लाइक दैट विच वॉज वेरी क्लीशे. तो अभी अगर मैं वो जोक वापस से परफॉर्म करूँ ना, आई विल बी लाइक ओ नहीं, दिस इज नॉट वॉट आई एम टुडे. सो यू गेट अ बेटर कॉमेडियन व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग वॉट इज योर जॉनर, एंड दैट टेक्स टाइम. आई वोंट से कि सालों साल स्टैंड अप करो और फिर सक्सेसफुल होंगे. तुम खुद के साथ खुश रहो, कभी ना कभी अगर सक्सेस है तो आ जाएगा. भागो मत उसके पीछे. 100 वीडियोज़, हर रोज़ नया कंटेंट, हर एक शो में नया. ये तो बहुत 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 चुतिया प्यार नए बच्चों का. इन लोगों को हर एक सेट में आके नया जोक्स करना है. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? इधर एक एक जोक बनने के लिए 10-10 ओपन माइक घिसा है. मतलब आई न्यू दिस इज़ द पंच लाइन. वो जो पाकिस्तान वाला सेट रिलीज़ किया था उसके अंदर दैट पॉन बिट, बस्टी AK-47, डिफ्लोरेशन विद आइसिस, गैंग बैंग विद ओसामा, दोज थिंग्स दे केम वन आफ्टर द अदर. मेरा पहला सेट में सिर्फ बस्टी AK-47 था और वो बचता ही नहीं था. एंड पीपल कुड नॉट रिलेट हो क्या रहा है. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कॉमिक्स के साथ डिस्कस किया, ओपन माइक्स में परफॉर्म किया जिधर कॉमिक्स ही थे, उन लोग ने आके बोला अरे ये ऐसा करना ट्राई. दैट इज हाउ दोज पंच लाइन्स डेवलप. सो 10-15 shows later I had a joke. I won't call it a set also. मेरे पास सिर्फ जोक था.
फिर धीरे धीरे सेंसिबल जोक्स आने लग गए कि पाकिस्तान में शहीद इज द वन हु डाइज इन द अदर कंट्री. So it eventually evolved with me. So if you want to eventually call yourself a comedian, be comfortable with yourself. जिस दिन तेरे को समझ में आ जाएगा कि ये जोक इज समथिंग दैट गोज वेल विथ मी या फिर मेरा थॉट प्रोसेस से मैच होता है, तो उस दिन अच्छा कॉमेडियन बन गया. तू हंसा रहा है लोगों को, 10 मिनट में तूने 2 क्लैप खाया, 50 क्लैप खाया. अगेन दैट इज अ परसेप्शन, बिकॉज आई हैव सीन कॉमिक्स हु कैन गो ऑन एन आवर का शो विथ जस्ट हा हा एंड येट बी लव्ड बाय पीपल. हर जगह पे हैवी पंच, हैवी ब्लो लैंड हुआ, मेरे को क्लैप्स मिला, किल किया. डिपेंड्स. एंड इवेंचुअली देख, तू वही सेट अगर घिसता रहेगा 10 साल बाद वो सेट इतना टाइट होने वाला है कि तेरे को पता है भाई किधर कितना पंच लाइन, किधर कौन सा पंच लाइन है, किधर क्लैप मिलेगा. सो इफ यू ऑब्जर्व बिस्वा एंड दीज पीपल, ग्रीन रूम में उन लोगों का ये डिस्कशन रहता है. मतलब इफ देयर इज अ सर्टेन शो जहाँ पे ऑडियंस इज स्लो, ऑडियंस नहीं काम कर रहे थे, उन लोग एक दूसरे को बोल के आते हैं कि देख मैं अभी 10 बार 10 क्लैप खा के आते हैं. दैट हैपन्स इवेंचुअली, बट वो पहुंचने के लिए गिव योर सेल्फ अ टाइम, एंड द डेज यू स्टार्ट बीइंग पेशेंट अबाउट योर सेल्फ, योर राइटिंग, you are a better comedian. Very simple thought. Okay, so let me invite my users to Pratik's channel. So you will be seeing the link somewhere over here. So click on and watch his videos. I've watched all the videos. Those are really funny. You've seen them live also. yeah. I've seen them. So you can check this out. Okay. So what are the qualities of a stand-up comedian? नहीं यार, बहुत हैवी है क्वेश्चन मेरे लिए. आई डोंट नो इफ यू नीड टू हैव, नेवर गिव अप. दैट्स द ओनली क्वालिटी आई विल से. जस्ट डोंट गिव अप. इफ यू रियली लाइक इट, इफ यू लाइक द प्रोसेस, तेरा 10 कंटिन्यू ओपन माइक गान करेगा, 15 करेगा, 20 करेगा, 21वें सेट पे तू टाइट किल करेगा, देन यू रियलाइज ओ शिट मेरे 20 शो में गलती क्या हुआ था. एंड देन आफ्टर दैट यू हैव अ लॉन्ग स्ट्रीक, 20-25 ओपन माइक फटाफट किल करेगा. एंड व्हेन यू स्टार्ट किलिंग, that is when you start writing new jokes and you start adding उसको tags जो बोलते हैं हम लोग कि ये नया tag मिला है, वो नया tag add होते जाता है. So only quality, भाई don't give up. It's a very rough world out there. लोग सालों साल effort करते हैं, they can't make it large, but because they're enjoying it, they stay there. And I guess comedian should have diversified career alongside unless and until he's not making it large. मतलब तेरा यूट्यूब नहीं चल रहा है, तेरे शोज नहीं बिक रहे हैं, फिर भी तू तेरा जॉब वॉब छोड़ के बैठा है. यू हैव टू बी सेंसिबल एट द सेम टाइम. पुनीत हैज टॉट मी दैट ऑल्सो. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड इनफ सेविंग्स कि मैं 1 साल मुंबई में सस्टेन कर लूँगा. एंड आई कॉल्ड हिम इन द नाइट. आई रिमेंबर 2:30 इन द नाइट आई कॉल्ड पुनीत एंड ही वाज फक्ड अप. तो रात में कॉल क्यों कर रहे हैं? मैं कहा सर सुनो मेरी फटी पड़ी है. तो सर वाज लाइक कि क्या हुआ बता. बोला सर देखो ऐसा ऐसा है सीन, घर पे लगी पड़ी है, मेरे को जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, आई वांट टू स्टैंड अप. पुनी ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, पैसा कितना है? बोला इतना पैसा है मेरे पास. तो लाइक देख 1 साल सस्टेन हो जाएगा. एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 साल बाद अगर नहीं हुआ तो क्या? बोला सर पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा मैं, थोड़े बहुत खर्चे निकल जाएंगे. हाँ बट तू अभी 25 साल का है ना, उनने पूछा मेरे को. बोला हाँ यार ये तो सही क्वेश्चन है. सो ही टोल्ड मी देख यू आर इन अ मार्केट विच इज़ ग्रोइंग. औरंगाबाद में जस्ट अपने खुद के पैर फैला, मेक श्योर दैट यू आर नोन बाय एवरीवन. फिर सिटीज़ में फैल और फिर बड़े सिटी में. क्योंकि अगर मुंबई छोड़ के, पुणे छोड़ के तेरे को बाकी के 20 सिटीज़ में लोग जानते, वो 20 सिटीज़ के लोग मुंबई पुणे आने वाले कभी ना कभी. तो वो अगर मुंबई पुणे आएगा और तेरा शो अगर लगेगा, चल तू पहले अगर 5 टिकट बेच पा रहा था ना, तो 20 बेच देगा. एंड दैट 20 इज गोइंग टू मेक अ बिग डील. क्योंकि तेरे पास जॉब भी है और अभी तो अगर 500 रुपये का 20 टिकट बेच रहा है तो तेरे को 10,000 रुपये मिल रहे हैं. सो यू हैव टू बी कैलकुलेटिव, you can't be irrational. Unless and until you are dead sure about your set, you can't get into it all in. So yeah, I believe you should never give up and be calculative. 2 important things. Okay, so what is your learning as a stand-up comedian? Learnings. I mean, what stand-up comedy has taught you? यार वही है यार, जो मैं अभी बोला ना वही खुद में सीखा हूँ. आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे. मैं तुमको अभी बोल रहा हूँ कि गिव अप मत करो. आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप व्हेन आई रियलाइज ओ फक आई कैन डू बेटर. सो बिकॉज आई डिड नॉट गिव अप, आई एम हियर एंड प्रोबेबली नोन बाय अ फ्यू पीपल कि इज फनी. एंड द सेकेंड थिंग इज आई वॉज टोल्ड बाय अदर पीपल टू डाइवर्सिफाई माई सेल्फ.
कि यार एक सोर्स ऑफ इनकम इज़ नॉट इनफ फॉर लाइफ. You come from a middle class family, you come from humble backgrounds, you need to make sure that you have everything sorted. So learnings basically तो वो है. और तीसरी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेरे को हर बार हिट करती है, इज़ समटाइम्स आउट ऑफ नोवेयर 10 शोज़ में 2-3 बार मेरे को किसी का टेक्स्ट आ जाता है कि भाई मेरे लगे पड़े थे, I was completely sad and I was depressed and then I saw you live, या फिर I just heard that joke of yours and I was like fuck, this is so right, मतलब this is so me. When they relate with your jokes, people end up texting you. And that is something which actually moves you as an artist. Artist को पैसा मत दे चलेगा, उसको validation दे दे. मतलब मैंने ये किसी का तो जोक था, आई डोंट रिमेंबर, कि बंदों को सेक्स मत दो, उनको वैलिडेशन दे दो. मतलब जयेश को सेक्स मत दो, ठीक है, जयेश को बोल दो मैं तेरे साथ सेक्स करूंगी, जयेश खुश है. मुझे क्यों बताया? मतलब जस्ट एग्जाम्पल यार. डोंट गिव पीपल द थिंग दे वांट, दे गिव देम द वैलिडेशन एंड दे विल बी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ. So that is exactly the thing which I actually learned कि यार दो तीन लोग को भी खुश कर दिया, उनका दिन खराब था अच्छा कर दिया तो कर लिया ना अचीव तूने जो करना था. सक्सेस आए ना आए देख लेंगे. अब बहुत उम्र बच्ची पड़ी है, कल मर गए तो फिर क्या ही रिग्रेट तो नहीं लेके जाएंगे ना ऊपर. मतलब ऊपर जाके ऐसा अगेन आई हैड दैट जोक इन औरंगाबाद सेट की, ऊपर जाके उसको किसी ने पूछ लिया कैसा मरा रे, तो लगे लैंड नहीं था, दैट जोक. सो that is something which I relate to myself also कि if I die tomorrow itself, do I die happy person? Yes, I die happy person. मैंने कर लिया, मेरे को जो करना था मैंने सब चीज़ें की. At the same time I tried and make sure कि my people are fine. So as a comic I learned to accept what the reality is and try to make an impact but don't overdo it. क्योंकि अगर ज़्यादा घिसने गए ना तो stress and फिर ये सब बाल जाते हैं. टकला हो रहा हूँ मैं. Okay, so जयेश को सेक्स मत दो वाली लाइन काट दी जाएगी. नहीं मैं बोल रहा हूँ उसको दो देना है, दो, ठीक है, नको. अभी ये पर्सनल हो रहा है. It's actually very funny conversation. I remember this my whole life. I couldn't get a better start to my show. Thank you so much for that.